So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Sejal with us. So Sejal, would you like to introduce yourself once? Yeah, sure. So I'm Sejal Agrawal and I belong to Dehradun, Uttarakhand. I have done my schooling and graduation both from Dehradun, Uttarakhand only. I am from Graphic Era Hill University, Dehradun, basically. And talking about my journey to engineering, I haven't thought that I'll do BTech in my career or I'll choose engineering as my career option, but it happened just like that, and I land up in Graphic at University. So yes, and talking about my journey through my engineering, so I have served as a Google Developer Student Club lead in my campus, where I conducted several events and impacted more than 1,000 students. Apart from this, I cracked Mm-hmm. internship on my Microsoft and PayPal. These were summer internship, and I also cracked the winter internship or Wayfair for 6 months. Yeah, that's all Mm-hmm. about me. All right, and I think for most of us, engineering happens by sort of a mistake or impulsive decision, right? None of us really go Yes, for engineering when we are yes. kids, yeah. So I'm very happy that you said that. Obviously, that's a bit of honesty in there. All right, so as you guys can see, she has cracked pretty much very a lot of great offers, right? That too coming from a tier three college, right? All of her offers were off campus. She cracked Microsoft, PayPal, Wayfair. And in this video, we'll be getting to know her entire journey about how she prepared, how she found the opportunities, and the interview experience, and everything in between, right? So it's going to be a very informative podcast. Make sure that you watch it till the end. All right, Sejal. So can you start us off with your coding journey in college? Like you said, you went into Graphic Era Hill University. And then how did you start your coding journey? Was it late, earlier? What all actually happened? Okay, so basically जो मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी इट वाज फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर ओनली. जो फर्स्ट वे मैंने दिया था वाज फॉर गूगल वी स्कॉलर प्रोग्राम. So talking about my coding journey, so first time I heard about terms like LinkedIn, Git, GitHub, off campus in my first semester only, and I was so overwhelmed with these terms. So I contacted my seniors and asked them about these things, and they pretty much told me about these things, and I started looking after these things. Then I get into coding. So I started my coding with basic things like arrays and all these stuff. And after talking to my seniors, I came to know about off-campus opportunities that are there. So I kept an eye on these opportunities as well. Yeah, so talking about my coding journey, yeah, that's all Mm-hmm. about my coding journey. Hi everyone. So as you might already know, I've taken interviews of a lot of people who have all cracked the top product-based companies. And there is one thing common in all of them, and this is something that is extremely important in cracking the top product-based companies, and that is rigorous DSA training. So there are a lot of courses out there that will make you learn DSA, but there are none out there that will make you solve 500 plus DSA problems and make you ready for interviews of companies like Amazon, Google, or Microsoft. So Samrat Bhardwaj, who's an engineer at Atlassian, and whose students work in companies like Amazon, Microsoft, and American Express is starting cohort 2 of his AlgoForge bootcamp after delivering amazing results in the first bootcamp. So, in this bootcamp, you'll be learning everything about DSA right from scratch all the way till advanced level, advanced problems, and you will be solving 500 plus DSA problems in the class. So, not only you'll be learning every topic in depth along with solving problems, but you will be getting mock interviews on top of that from FANG engineers so that you are ready for the real world interviews. And the best part of it is that the batch size is going to be limited. So you'll only have around 40 students so that they are able to give attention to every one of them. So you will be getting the proper attention that you need so that you are able to master every concept and so that you do not lag behind and everyone is given the proper and necessary attention. Now, the link and the form to apply is in the description box, but like I said, the batch size is going to be limited, so you have to hurry because it can close soon. And if you find a better course than this for the same price range with more problems, then Samrat is going to pay for it. So, what are you waiting for? If you want to master DSA and crack the top product based companies, then click the link in the description and fill out the form right now. And now let's get back to the video. राइट एंड आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली अगर आप टीयर थ्री कॉलेज से हो तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव दी नेटवर्क या ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी तो एक सीनियर से कनेक्ट करना जो भी अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि आपको मिल जाएंगे टीयर थ्री में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ऑफ कैंपस अच्छी कंपनीज फोड़ रखी है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ टच में रहो राइट ऑलराइट तो थोड़ा आप इन डेप्थ बता सकते हो अपने कोडिंग में लाइक जैसे आपने स्टार्ट किया फ्रॉम अ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देन
basic data structures and all, how did you progress further? Like how did you come on the level कि ठीक है थोड़ी अच्छी कंपनीज ऑफ कैंपस के लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो एंड आप क्रैक कर सकते हो? Okay, so as I mentioned about my seniors, apart from my seniors, I referred YouTube channels also. YouTube channels such as Arsh Goel, Faraz, and all these YouTube channel has made a lot of videos on how to start your coding journey, right? So मैंने सारे YouTube channels के जो भी videos थे, I watched all the videos regarding coding strategy और मैंने अपनी ही एक strategy बनाई कि मैं इसको ही follow करूंगी. So for that strategy मैंने basic like 365 जो 365 वाली sheet है Striver की, basic A to Z वाली sheet, तो वो उस टाइम पे आई नहीं थी। तो नॉर्मल शीट थी जो स्ट्राइवर की थी एसटी शीट दैट वाज़ देयर। सो मैंने उसी शीट से करना शुरू करा था। फिर आई वाज़ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दैट शीट और मैं यूट्यूब पे ही लव बब्बर के, स्ट्राइवर के इन सब के वीडियो देखती थी और उनसे मैं पढ़ती थी। देन स्ट्राइवर की शीट आ गई थी ए टू ज़ी वाली, देन आई फॉलोड दैट शीट आल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई आल्सो रेफर्ड अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स like for other purposes. For example, you might have heard about like Surgy. It's for C++, Hmm. right? So Yeah, my surgery. yeah, yeah, my surgery. Yeah. So I followed that for collection for collections of C++, right? Basic data, STL. yeah, Yeah. yeah, STL of C++. So I followed that, and likewise various YouTube channels I followed. So I never stick to one YouTube channel because I always feel that I might miss something or I it might happen that there is something else that I need to know, right? So I often use the term that is googling very much. Whenever I stuck somewhere, I googled it right there and ताकि मेरा जो concept है वो clear रहे ताकि पूरा। तो ऐसे ही मैंने कोडिंग अपनी स्टार्ट की थी और वैसे ही मेरे को जैसे आई पार्टिसिपेटेड इन लॉट ऑफ क्लब्स राइट सो क्लब्स में पार्टिसिपेट करके ये होता था कि आई कैन कॉन्टेक्ट माय सीनियर्स एंड आई कैन टॉक विद देम राइट उन्होंने वो फेज से पहले ही निकल चुके हैं सो मेरे लिए वो बेटर था कि जो गलती उन्होंने करी है मैं वो गलती ना करूँ राइट सो उन्होंने जैसे मुझे थोड़ा बताते थे कि आई शुड फोकस ऑन रिज्यूमे। ऐसा नहीं होता था कि वो मुझे पूरा ही एंड टू एंड बता पा रहे हैं, मतलब बताऊँगा तो उनके पास भी टाइम नहीं होता Hmm. ऑफ कोर्स राइट? तो नहीं होता, जितना यस। वो मुझे बता Hmm. पाते थे, आई यूज्ड टू हियर एंड देन मैं अपनी तरफ से फिर ट्राई करती थी कि हाँ, मैं अब इसमें और अच्छा करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रिज्यूमे के टेम्पलेट के बारे में नहीं पता था, जब आई वाज़ इन माय फर्स्ट ईयर। Hmm. तो वन ऑफ माय सीनियर टोल्ड मी अबाउट आईआईटी बॉम्बे फॉर्मेट, राइट? सो आई Hmm. यूज़ दैट Hmm. फॉर्मेट ओनली फिर धीरे-धीरे करके जब हम करियर में से आगे बढ़ते जाते हैं, ईयर्स बीटेक में से आगे बढ़ रहे थे, तो आई केम टू नो अबाउट डिफरेंट टेम्पलेट्स मैंने उनमें स्विच करा, देन आई अप्लाई टू डिफरेंट कंपनीज़। सो ऐसे ही था कि बेसिक कोडिंग से शुरू करा था। ऐसा नहीं था मेरे को एक ही बार में सब पता था मेरे को क्या करना है। Hmm. थोड़ी-थोड़ी नॉलेज थी मेरे को, उसके हिसाब से उसी स्टोन्स को यूज़ करके मैंने पूरा ये बिल्ड करा। तो स्टार्टिंग में पूरा कंप्लीट नहीं पता था। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वही एक थोड़ा डिसएडवांटेज होता है टीयर थ्री में कि लोग को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, बट इट्स ऑल अबाउट, अब जितना गूगल करो, रिसोर्सेज यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, सीनियर्स से कनेक्ट करो, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड विल ऑल्सो कम इन टू हाउ यू एक्चुअली फाउंड द अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन। बट बिफोर दैट एक और डाउट जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो काफ़ी टीयर थ्री स्टूडेंट्स को होता है, कि सीजीपीए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि उनका सीजीपीए लो है तो फिर उसके कारण उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, या सीजीपीए और अटेंडेंस पे कितना फोकस करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम their other preparations. So, what do you think? Is it important, or in terms of off campus, or is it not that important? In terms of off-campus, it is not that important, but at least you should have a CGPA of 8 plus, right? But अगर आप on-campus opportunities के लिए, if you talk about on-campus opportunities, and there are a lot of students in your college or university, then it's kind of a necessary thing that you have CGPA of more than 9. But off-campus के लिए 8 plus CGPA is good to go. और talking about attendance, attendance से यही होता है कि in college you are allowed to sit in your uh, like exams or not, right? So you should have 75% attendance, but you should not focus on 100% attendance. Basically utilize that 25% attendance on yourself and building your skills. Or ऐसा भी होता है colleges में that if you participate in a lot of clubs, then you get a certain wave off in your attendance because during that time you were in that club, so that club tends to like contact your seniors like a senior teachers or right for the attendance waive off. So you can try that also because एक तरीके से club में भी आप जाओगे, so you'll get to know about the working of that club, get to know work culture, right? So उस तरीके से यूटिलाइज करो मैं 75% अटेंडेंस को और बाकी 25 को खुद के स्किल्स पे यू कैन यूटिलाइज। Correct, correct, correct. All right. So before we go forward, can you tell us a bit about your interview experience at PayPal?
like it was off campus, right? And of course Yes. people want to know कि off campus में interviews कैसे होते हैं, क्या क्या पूछते हैं वो लोग, तो आप थोड़ा बताओगे आपका interview experience कैसा था? Okay. So off campus, yeah, PayPal opportunity was off campus, and in fact, Microsoft and Wayfair was also off campus. So PayPal, me, I had one OA, in was system design, and one DSA question was asked, and and afterwards, I had two interviews, and first one was basically DSA interview. Second one was DSA and project based or HR based interview, right? So first interview में दो question थे DSA के that I solved completely, and little bit of questions from CS fundamentals and my projects. Then coming to next round, it was based on DSA and HR questions, project based questions, CS fundamentals. One DSA question was there, और वही की प्रोजेक्ट में जो भी मैंने बनाया है अबाउट दैट, और जो भी सीएस फंडामेंटल्स उस टाइम तक मैंने करे थे, तो वो सारे थे। यस, सो दैट्स ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद आफ्टर 1 or 2 months आई रिसीव सिलेक्शन एट पेपाल। नाइस नाइस। तो जैसा आपने बताया इट वाज क्वाइट डीएसए हैवी, है ना? कि या डीएसए डीएसए वाज अ हैवी। पार्ट ऑफ यस। एवरी। राइट राइट। तो डीएसए का लेवल आपको क्या लगा, जैसे आपने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, वाज इट इजी, मीडियम, हार्ड, लाइक क्या लेवल लगा Okay, आपको लीड कोड के हिसाब so से? the level was from medium to hard. I won't say easy and I won't हम्म say medium also, because the questions are not exact the lead code questions. They might be little हम्म। modified questions, but if you have it, डिविएशन या। yeah, deviation could be there. But if you know about the concept, then you can easily solve that question. So I would say medium to hard question, because it was during the time of my intern, during my second year, right? During end of my second year and start of my third year. So yeah, they won't ask very हम्म। hard questions to that, or like to the student of third year. Yeah. And we'll be getting to know about your DSA journey and other preparation journey as well. But before that, one more thing I want to discuss, which is very important for, especially for tier 3 students, is getting the opportunities. Because as you might be receiving a lot of messages from people who are Yes. struggling, getting interview calls and getting the opportunities. And of course, you have faced this as well. So would you like to talk a bit about this, like how to actually get the opportunities themselves? Okay, so इसके लिए मैं ये कहूँगी, बी वेरी एक्टिव, वेरी 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 एक्टिव, बिकॉज Hmm. अपॉर्चुनिटी आती है और आगे तुरंत बंद हो जाती है। यू वोंट बी चली एबल टू जाती नो है, वेरी कि ट्रू। ये अपॉर्चुनिटी आई भी थी, एंड विल बी लाइक कि भाई ये वेरी ट्रू। अपॉर्चुनिटी कब आई थी और कब भरनी थी। तो इसके लिए यू कैन फॉलो सम चैनल्स लाइक अर्श गोयल चैनल आर इज देयर, किशन कुमार चैनल इज देयर, and some other My challenge, channel is yeah, also your there. channel is there, and many other channels are also there. You can follow LinkedIn also. LinkedIn पे active रहो, there people post about internal openings also, right? और वहाँ पे वो लोग अपने चैनल्स का भी बताते हैं कि मैंने ये चैनल बनाया है, यू कैन जॉइन दैट चैनल। अगर आपको लगे वो अच्छा है चैनल, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उस पर ज्वाइन रहो, नहीं तो लीव कर दो। सो ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, यू कैन गेट टू नो इन लिंक्डइन ऑल्सो। सो मेन चैनल्स तो यही है, लाइक अर्श कोहली, योर चैनल, एंड other, like I told about Kishan Kumar channels. You can visit these channels frequently. और इसके लिए व्हाट्सएप पे भी चैनल है इनके, तो यू कैन यूज दैट इंस्टेड ऑफ टेलीग्राम, राइट? टेलीग्राम बहुत कम यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप तो फ्रीक्वेंटली ओपन हो ही जाता है। तो या इसके अलावा करियर पोर्टल्स पे भी ओपनिंग्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप में एक ओपनिंग आ जाती थी, फॉर एग्जांपल एसटी इंटर्न के लिए, आपने उसके लिए भरा, पर मे बी कि आपको रिवर्ट नहीं आया, बट हो सकता है कुछ मंथ्स बाद, या अगर ओपनिंग कुछ खुली हो, आपको रिवर्ट आ जाए कि हाँ, वी हैव दिस ओपनिंग। सो मेक श्योर कि अगर कोई ओपनिंग आ रही है, ये सोच के डोंट रिजेक्ट योरसेल्फ, ओके? नेवर रिजेक्ट योरसेल्फ। तो अगर आपको लगता है ओपनिंग आई है, फिल इट। डोंट थिंक कि मेरा होगा नहीं होगा, जस्ट फिल इट। हो सकता है कि अभी ना हो, बट उनके डेटाबेस में तुम्हारा रिज्यूमे चला जाता है, सो दे माइट कॉन्टेक्ट यू इन फ्यूचर कि ओपनिंग है, एंड इफ दे फाइंड यू अ सुटेबल फिट, दे विल श्योरली कॉन्टेक्ट यू। So I have got several opportunities through this also. Yes. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो Mm-hmm. आपने बोली, मैं इसको रिआइट्रेट करना चाहूंगा। हाँ। लोग को पता नहीं चलता है ओपनिंग कब आई, एंड द थिंग इज ना, Mm. लोग ओपनिंग, कंपनीज ओपनिंग डालते हैं and वो 2-3 दिन में बंद कर देते हैं। Yes. तो देयर अ वेरी स्मॉल गैप जिसके अंदर आपको Mm-hmm. रेज्यूमे रेडी रखना है, अप्लाई करना है। बहुत बार Mm-hmm. नेक्स्ट डे बंद हो जाती है, उसके अगले दिन बंद हो जाती है। तो एक्टिव होना इज डेफिनेटली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग जिसके लिए काफी लोग मेरे को मैसेज करते हैं इज दैट दे आर अप्लाइंग एवरीवेयर, बट उनका रेज्यूमे बहुत जगह शॉर्ट लिस्ट नहीं होता, उनको रिवर्ट Yes. बैक नहीं आता। तो इज देयर एनीथिंग यू फील कि द फ्रेशर्स और बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स कैन डू टू मेक श्योर कि शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस थोड़े बढ़ जाए?
ओके, मैंने ना बहुत लोगों को देखा है कि ओपनिंग आती है, दे ओपन दैट ओपनिंग और जो भी रिज़्यूमे उनके पास पड़ा होता है, बस फिल करके सबमिट कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। पर मैं कभी 2-3 मिनट में सबमिट नहीं करती कोई भी फॉर्म अपना। आई टेक टाइम, आई रीड अबाउट द डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट ओपनिंग कि क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। उसके हिसाब से रिज़्यूमे को थोड़ा-सा अल्टर करो, थोड़े-से अल्टरेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ाम्पल अगर रिज़्यूमे उसमें लिखा है ओपनिंग में, दे नीड मोर फ्रंट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लाइक अगर सारे बैकएंड के डाल दोगे तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो थोड़ा फ्रंट एंड हेवी रखो, बैकएंड पे डालो, बट फ्रंट एंड थोड़ा-सा हेवी रखो। तो थोड़ा रिज़्यूमे को अल्टर करते रहो और मेक श्योर तुम ATS स्कोर अपने रिज्यूमे का चेक करो। There are several websites like Enhance CV, Resume Worded. You can use those websites and उससे अपना रिज्यूमे का ATS स्कोर मेंटेन रखो. At least it should be 80. Like 80 is a good score. 80 plus is a good score. Yes. एग्जैक्टली हाँ, ये बहुत जरूरी है। लोग yes. एकदम ज्यादा ही हाँ, जल्दबाजी में भी नहीं आना है आपको कि वही। आते ही तुरंत हुँ, कुछ भी डाल दो। वही। और हाँ, ये थोड़ा थोड़ा जैसे कि आपको हाँ जी। नियम में। और जैसे फील्ड्स हाँ। होती है, रीड दैट केयरफुली उसमें माँगा क्या है, कई बार हम जल्दबाज़ी में कि अपनी नाम गलत डाल दिया, कुछ गलत डाल दिया, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती। थोड़ा-से ढंग से आराम से बैठ के यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। Correct, correct, correct. All right, definitely these are some great advice for getting हुँ, your resume shortlisted. All right, तो finally आपके प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आते हैं, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट भी क्रैक किया, हुँ, पेपल भी हुँ, क्रैक किया। बोथ ऑफ दीज कंपनीज आस्क गुड लेवल ऑफ या, डीएसए, मतलब लाइक यू सेड इजी मीडियम नहीं, मोर ऑफ द मीडियम हार्ड या, लेवल। तो आपको डीएसए भी प्रिपेयर करना था, थोड़ा सा हुँ, सिस्टम डिजाइन भी था पेपल में, एंड आजकल फ्रेशर्स के लिए भी सिस्टम डिजाइन इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट? तो आपका पूरा प्रिपरेशन जर्नी कैसे था? इतनी सारी चीजें मैनेज करनी है एंड सब में आपको अच्छा आना चाहिए, तो आपने प्रॉपर प्रिपेयर कैसे किया ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए? ओके, एज़ आई सेड कि ऑफ कैंपस का मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से पता चल चुका था। नॉट कंप्लीटली कि ऑफ कैंपस क्या है, बट हाँ, टर्म्स सुन लिया था सो दैट आई कैन गूगल मोर अबाउट दैट। सो वही धीरे-धीरे पता चला लाइक आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि ऑफ कैंपस क्या होता है, कैंपस के बाहर ये क्या है? मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया था, जब मैंने पहली बार सुना था इसको। तो देन आई केम टू नो कि हाँ, ऐसे ओपनिंग आती है एंड वी हैव टू फिल दैट ओपनिंग उससे फिर हम प्रोसेस कर पाते हैं आगे। तो यू आर टॉकिंग अबाउट माय जर्नी सो तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से आई स्टार्टेड डूइंग डीएसए एंड प्रोजेक्ट्स। तो फर्स्ट ईयर बेसिकली मैंने डीएसए पे ही फोकस रखा बिकॉज़ आई नो जो बड़ी एमएनसीज़ होती है दे आस्क प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ आस्क डीएसए ओनली। एंड डेवलपमेंट पे फोकस होता है बट तुमने प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए हैं कैसे नहीं बनाए हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर स्टार्टअप्स में जाना है सो यू हैव टू बी ऑन अ डेवलपमेंट साइड राइट। बट अगर आपको टीबीसी या फिर एमएनसी लाइक बिग एमएनसी में जाना है यू हैव टू बी ऑन डीएसए साइड। और अगर आपको मतलब थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है तो मेरा शुरू से ही था कि स्टार्टअप्स भी अच्छे हैं और पीबीसी भी लाइक अच्छे हैं तो मुझे था कि मैं डीएसए करूँ या डेवलपमेंट करूँ मेरे पास थोड़ा कंफ्यूजन था। तो मैंने दोनों पहले शुरू करा, देन आई केम टू नो कि हाँ, डीएसए में ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैंने कहा डीएसए ज़्यादा करते हैं, तो मैंने डीएसए ज़्यादा करा था फर्स्ट ईयर में, देन उसके बाद आई शिफ्टेड टू फिर पता लगा लाइक गूगल की ओपनिंग आती है, एक सेकंड ईयर फीमेल के लिए राइट? आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम समथिंग इज़ देयर फॉर स्टेप इंटर्न इज़ देयर राइट? स्टेप इंटर्न इज़ देयर फॉर सेकंड ईयर, सो उसमें उसका मेरा पहला फॉर्म था जो मैंने अपने बीटेक में भरा था। पहला इंटरव्यू जो मैंने दिया था वो जीडीएससी के लिए था, जीडीएससी लीड के लिए फर्स्ट ईयर में दिया था मैंने इंटरव्यू एंड फर्स्ट जो मैंने ऑनलाइन असेसमेंट का फॉर्म भरा था वो गूगल वी प्रोग्राम के लिए था और जो मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी ओपनिंग का भरा था वो गूगल स्टेप इंटर्न का था। तीनों ही गूगल के से रिलेटेड हो रहे थे वो। तो फिर मतलब हो ही गया था कि समझ में आ गया था कि हाँ, प्रोजेक्ट ज़रूरी है और प्रोजेक्ट्स का मुझे शुरू से पता था पर हाँ, डीएसए में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो डीएसए ही कर रही थी। देन आई शिफ्टेड टू प्रोजेक्ट्स आल्सो। तो मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए आई फोकस्ड ऑन वेबडी राइट? तो मैंने वेबडी करी जितनी लाइक आई फॉलोड सम कोर्सेज़, आई फॉलोड कोर्स ऑफ लव बब्बर आल्सो एंड यूट्यूब से कोड विद हैरी से और ऐसे लॉट्स ऑफ चैनल्स आर देयर लाइक कोई भी चैनल होगा यूट्यूब पे और कोई मतलब अगर मुझे कहेगा कि हाँ, ये चैनल है, तुमने इससे पढ़ा है? आई विल बी लाइक हाँ, मैंने इस चैनल से पढ़ा है। ऐसा कोई ही चैनल होगा जो मैंने जिस चैनल से नहीं पढ़ा होगा, मैंने सब चैनल से पढ़ा है लगभग। तो वही क्या है। तो अभी का मुझे नहीं पता लाइक उस टाइम पे लाइक पिछले साल तक जो भी चैनल्स चल रहे थे सबसे लाइक मैं तो किसी ना किसी से पढ़ा ही है। और सीएस फंडामेंटल्स के लिए आई रेफर गेट्स मेशर्स और नॉलेज गेट इज़ आल्सो देयर। सो या प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए फिर अपने और प्रोजेक्ट्स से मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं प्रोजेक्ट खुद से बना रही हूँ। मैंने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया जब मुझे आ गया था। जब मुझे नॉलेज हो गई थी मेरे को। आई क्रैक्ड इन्फॉर्मेटिका नेशनल हैकाथॉन आल्सो एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड नेशनल हैकाथॉन आल्सो। सो आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स और उसमें जो मेरी लर्निंग्स होती थी, जो मैंने लर्न करा है छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स बना के उसको यूटिलाइज़ करके आई यूज्ड टू मेक प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग हैकाथॉन्स।
सो दैट्स अबाउट माय प्रोजेक्ट्स और वही मैं रिज्यूमे मेंशन करती थी अबाउट माय प्रोजेक्ट्स देन माय डीएसए लीड कोड में रेटिंग क्या है इन सब चीजों के बारे में और अचीवमेंट्स में आई यूज्ड टू मेंशन अगेन अबाउट माय हैकाथॉन्स and my extracurricular activities like I served for GDSC lead and IEEE chairperson और कितने इम्पैक्ट करा मैंने कितने लोगों को राइट मैंने कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं होता कि आप टेक्निकल 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 करो हर टाइम योर माइंड नीड्स डेविएशन राइट अब आपको भी पे चाहिए वी आर अ सोशल एनिमल एंड वी नीड टू कम्युनिकेट विद अदर ऑल्सो अगर आप खुद से ही पढ़ते जाओगे तो नहीं हो पाएगा सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर्स तो इन क्लब्स या कम्युनिटीज के थ्रू मैंने बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए हैं अपने तो या नेटवर्क भी बिल्ड हुआ है एंड मुझे थोड़ा डेविएशन भी मिला है सिर्फ टेक 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 नहीं रहा मेरी लाइफ में या और कॉलेज जाने का एक और लगा कि हाँ कॉलेज जाना चाहिए इस मामले में तो या सो इस तरह ही मेरी प्रेपरेशन फिर माइक्रोसॉफ्ट की ओपनिंग आई सो आई लाइक टू मेंशन कि जिस दिन मेरे माइक्रोसॉफ्ट की ओपनिंग आई इंटरव्यू था उस दिन मेरा पहले माइक्रोसॉफ्ट का एक इंटरव्यू था देन मेरा कॉलेज का एक एग्जाम था देन अगेन मेरा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू था और ऐसा भी नहीं पता था कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट का सेकंड इंटरव्यू होगा या नहीं होगा लाइक इट्स फर्स्ट राउंड इज एलिमिनेशन राउंड राइट तो मैंने अपना फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू दिया एंड मैं अपने एग्जाम में मैं आधा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर आई इतना कि मैं पास हो जाऊं एंड देन आई केम बैक और मैंने फोन अपना आके चेक करा कि सेकंड राउंड की कॉल आई है या नहीं है इट वाज देयर फिर मैंने अपना सेकंड राउंड इंटरव्यू मैंने अपना दिया या सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट माय प्रिपरेशन और इसी तरीके से फिर मैंने और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करती रही जब मेरे को फुल टाइम के लिए पढ़ना था फिर मुझे पीपीओ मिल गया था अपने पेपाल का फिर एट दैट टाइम आई वाज लिटिल चिल कि थोड़ा अब चलो लाइफ एंजॉय करते हैं फर्स्ट ईयर से आई एम लाइक हाँ। डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फिर मैंने अपने थोड़ा टाइम वगैरह निकाला यस नाइस 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 तो इससे बहुत एक बड़ी लर्निंग है राइट फॉर द व्यूअर्स कि जैसे यू डिड सो मेनी थिंग्स अपने हैकाथॉन्स में भी पार्ट लिया आपने डीएसए भी अच्छी तरीके से किया काफी सारे अपने जैसे नॉन टेक चीजें भी की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली टीयर 3 वगैरह के लिए कि आप थोड़ा हाथ पैर मारो या हर जगह आप चीजें ट्राई करो आप स्किल्स बिल्डअप करो तभी आपका रेज्यूमे एक अट्रैक्टिव रेज्यूमे बनेगा अगर आप सिर्फ एक चीज करके रखे हो फिर आप बोलोगे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा तो obviously the competition is so high you need to do various things you need to put those things in your resume and then it will showcase to the recruiter or to the company कि हाँ you're a worthy candidate right तो ये यस बहुत एक important चीज हो जाती है कि आप प्रिपरेशन के साथ ये सब चीजें मैनेज करो राइट राइट करेक्ट 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 ऑल राइट एंड थोड़ा जैसे सिस्टम डिजाइन भी एक चीज है अपार्ट फ्रॉम डीसेंट प्रोजेक्ट्स दैट राइट नाउ फ्रेशर्स आर थोड़ा वरिंग अबाउट तो इन योर केस डिड यू फील बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स या लुकिंग फॉर ऑफ कैंपस वाज जस्ट डीएसए इनफ या यू फेल्ट कि सिस्टम डिजाइन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था एट दैट सो पॉइंट मेरे पेपाल के ओए में 4 to 5 question of system designs were also there. Like when I was in like my second year was ending and my third year was starting, right? So system design important है पर उतना नहीं यू हैव टू लाइक नो बेसिक थिंग लाइक लोड बैलेंसर क्या होते हैं कि आर्किटेक्चर कैसा बनता है बेसिक थिंग्स यू शुड नो ठीक है उसके बाद सिस्टम डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर इंटर्नशिप बट अगर आप आते हैं फुल टाइम के लिए तो कुछ कंपनीज में सिस्टम डिजाइन के राउंड्स होते हैं सो फॉर दैट यू शुड और ऐसा कर सकते हैं कि आपने डीएसए और प्रोजेक्ट सीएस फंडामेंटल ढंग से प्रिपेयर करे हैं एंड यू नो कि अभी आप फुल टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिस्टम डिजाइन एंड you can follow resources such as Gaurav Sain YouTube channel is there, pseudocode is there because I also did system design in my third year only. Before actually I have given my Google application engineer interview in my third year. उसके बाद ही मेरा पेपाल का ओए था तो मैंने गूगल एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए सिस्टम डिजाइन पढ़ लिया था तो मुझे उसका फायदा पेपाल के ओए राउंड में हुआ था तो कुछ भी चीज वेस्ट नहीं जाती मुझे था कि पता नहीं गूगल एप्लीकेशन इंजीनियर का निकलेगा नहीं निकलेगा लाइक फर्स्ट टाइम सिस्टम डिजाइन पढ़ना है पता भी नहीं था कि इंटरव्यू में सिस्टम डिजाइन आएगा पहला राउंड डीएसए था विच आई क्लियर देन सेकंड राउंड है सिस्टम डिजाइन उसके लिए सिर्फ 1 वीक मिला था कॉलेज भी था उसी में प्रिपेयर करा कंप्लीट सिस्टम डिजाइन मैंने अपना इंटरव्यू दिया और ऐसा नहीं है कि मैं इंटरव्यू नहीं दूं या मैं सोचूं निकलेगा नहीं निकलेगा दिया मैंने और उसका मेरे को फायदा फिर पेपाल में हुआ पेपाल के ओए में सो कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती अगर यू हैव टाइम एंड यू नो बैंडविड्थ है आपके पास उतनी तो जस्ट ट्राई इट दे दो उसे पढ़ लो तुम उसे और उसका काम आता ही है तो सिस्टम डिजाइन जरूरी है बट उतना नहीं पर अगर फुल टाइम के लिए अप्लाई करो तो देर आर लाइक अगर आप डेवलपमेंट के साइड भी जाओगे तो कुछ कुछ सिस्टम डिजाइन के कंप्लीट राउंड्स होते हैं उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा सिस्टम डिजाइन पर अगर आप एस टी की तरफ जा रहे हो उतना जरूरी नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी अनलेस एंड अनटिल कि उस स्पेसिफिक कंपनी में कंप्लीट राउंड सिस्टम डिजाइन डिजाइन का हो
Correct, correct, correct. Makes sense, makes sense. All right. So I guess that's some great advice right there, Yes. hidden in the journey that we have just discussed. So I guess that pretty much covers everything about Sejal's journey to cracking these wonderful offers, coming from a tier 3 college. And if anyone still have any doubt, I'll give Sejal's LinkedIn in the description. You guys can follow her from there and connect with her from there as well. So thanks a lot, Sejal, for coming on my channel and sharing your wonderful journey and these wonderful tips with me and my subscribers. I really hope this will help a lot of students. So yeah, thank you. Yeah, thank you so much, Ashish, for giving me such opportunity so that I can share my learnings with other also and other get motivated and can follow these things in their BTech journey or engineering journey to have a good job or like good career option after that.